everyone. Class 7, Subject Science, Chapter 1st, Part 3. Venus flytrap. Insects are lured by the nectar into the jaw-like leaf trap of the Venus flytrap plants. Once the insect sits on the leaves, the jaw clamps shut and the insect is trapped in it. The plant immediately secretes digestive juice that flushes down and then dissolve the insect. Venus flytrap. कीट जो कीड़े होते हैं अमृत द्वारा लाल हो जाते हैं। विनस फ्लाईट्रैप संयंत्र के जबड़े के पत्तों के जाल में फंस जाते हैं। जब कीट पत्तियों पर बैठ जाता है तो जमा दब जाता है और कीट फंस जाता है। पौधे तुरंत पाचक रस को स्रावित करता है जो कि डूब जाते हैं। फिर कीट में घोल देता है। सुडेप। Its leaves are covered with hair-like structure, tentacles that issue a sticky dew-like substance that glitters in the sunlight. When an insect lands on the sticky tentacles of a sudape plant, it struggles to free itself, but this struggling stimulates the tentacles to tighten their grip. The tentacles then produce a digestive juice that dissolve the victim. अब हम देखते हैं सुडेप जो होता है इनकी पत्तियों में बालू जैसी संरचना होती है, टेंटलेस से ढकी होती हैं। यह एक चिपचिपा ओस जैसा पदार्थ होता है जो सूरज की रोशनी में चमकता है। जब एक कीट सूडे के पौधे में चिपचिपे पदार्थ में बैठता है तो वह खुद को मुक्त कराने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन यह संघर्ष तंबू को उत्तेजित करता है। तंबू तब तक एक पाचक रस का उत्पादन कर लेता है। पिचर प्लांट्स। The leaves of the pitcher plant develop from the tips of leaves which stand into tendrils and then swell like balloons. The pitcher have a lid that acts as a landing platform for insects. It also helps to prevent rainwater from diluting and digestive juice inside the pitcher. The inside of the pitcher is lined with downward pointing hairs which do not allow any insect to climb back and escape. Insects are attracted to the pitcher by its scent or color and slide down the valve down into digestive juice at the bottom which dissolve the insect. पिचर प्लांट एक कलश पादप होता है जो कि घड़े के पौधे की पत्तियों जैसा विकसित होता है, जो टेंडल्स और गुब्बारे की तरह फैलता है। पिचर एक ढक्कन है जो कीड़े के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। पानी के जग जैसा होता है जो पाचक रसों को पतला करने से रोकने में मदद करता है। जग के अंदर की ओर नीचे की ओर बालों की परत होती है जो कीड़े के पीछे भागने की अनुमति नहीं देती। कीड़े जग में इसकी गंध या रंग से आकर्षित होते हैं और दीवारों के नीचे की ओर खिसकते हैं। पाचन रस में फिर डूब जाते हैं। कीट डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। Bladderwort. The stem and slender leaves of bladderwort bear a large number of very small pear-shaped bladders. The bladders have small membrane covers that act as doors. Their oval shape creates a vacuum that sucks in tiny insects within 1/1000th of a second. When they
trigger the hair that are located around the doors. Digestive juice are then released inside the bladder to digest the prey. अब हम देखते हैं ब्लैडर को, ये बड़ी संख्या में बहुत छोटे नाशपाती के आकार के होते हैं। ब्लैडर्स में छोटे झिल्ली वाले आवरण होते हैं जो दरवाजे के रूप में कार्य करते हैं। उनके अंडा का आकार एक वैक्यूम बनाते हैं जो 1 सेकंड के 1000 हिस्से के साथ छोटे कीड़ों में होते हैं। दरवाजे के पास स्थित बालों को ट्रिगर करते हैं। पाचन रसों को पचाने के लिए ब्लैडर के अंदर छोड़ा जाता है। Symbiotic plants. The plants which mutually benefit each other are called symbiotic plants. This kind of mutual relationship is called symbiosis or mutualism. Lichen is a remarkable example of symbiotic relationship. It is a combination of a alga and a fungus, a spirophyte. The fungus provides water or minerals to the alga, whereas algal part, which as chlorophyll, supplies synthesis food to the fungus. A rhizobium supplies synthesized food of the fungus. A rhizobium bacteria lives in the root nodules of certain leguminous plants such as peas and beans. It converts atmospheric nitrogen into sevin, from example ammonium for the plants. The plants is return provides from ants later to the bacteria. Symbiotic plants मतलब सहजीवी पौधे, वह पौधे जो परस्पर एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं सहजीवी पौधे कहलाते हैं। इसी आपसी संबंध को सहजीवन कहा जाता है। लीचेन सहजीवी पौधों का उदाहरण है। यह एक शैवाल है और एक कवक का एक संयोजन है। कवक अलगा को पानी और खनिज प्रदान करता है, जबकि अलगल भाग जिसके क्लोरोफिल होता है कवक को संश्लेषित भोजन की आपूर्ति करता है। एक राइजोबियम जीवाणु मटर और फलियों जैसे विशेष पौधों के जड़ में रहता है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को प्रयोग करने में परिवर्तित करता है। परमाणु में संयंत्र बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करता है। न्यूट्रिशन रिप्लेसमेंट इन द सॉइल. You have studied about the 2 types of nutrition in plants. Green plants are autotrophs, which prepare their own food. They take raw materials from soil and air and sun energy of synthesis food. The balance of carbon dioxide and oxygen is steadily maintained by plants and animals on the earth. Plants release oxygen gas during photosynthesis and they utilize carbon dioxide gas released by animals. But do you know that plants constantly utilize nutrition from the soil absorbed with water? Due to this continuous utilization, the soil gets depleted of vital nutrition. Therefore, soil needs addition of the nutrition from time to time to maintain its fertility. Let's understand how is the fertility of the soil maintenance. मिट्टी में पोषण की आवश्यकता. आपने पौधे में 2 प्रकार के पोषण के बारे में अध्ययन किया है. हरे पौधे ऑटोट्रॉफ होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं. वह मिट्टी और हवा के कच्चे माल लेते हैं और भोजन को संश्लेषित करने के लिए सूरज की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन पृथ्वी और पौधे और जानवरों द्वारा लगातार बनाए रखा जाता है. पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और जानवरों द्वारा जारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौधे लगातार पानी को अवशोषित मिट्टी से पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं? इस निरंतर उपयोग के कारण महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी हो गई है. इसलिए मिट्टी को समय समय पर अपनी उर्वरता को बनाए रखने के लिए समय समय पर इन पोषक तत्वों को जोड़ने की आवश्यकता होती है.
Addition of manures are decomposed matter of animals and plant wastes. They are rich in essential nutrition, and humus manures are added to enrich the soil with vital nutrition that plants require. Cattle dung is mostly used by farmers as manure. अब जानवरों और पौधों के कचरे के ममलों का विघटन होता है। वह आवश्यक पोषक तत्वों और धारण में समृद्ध होते हैं। पौधे को आवश्यक पोषक तत्वों के साथ खाद की समृद्ध करने के लिए खाद मिलाई जाती है। मवेशी के गोबर का उपयोग ज़्यादातर किसान खाद के रूप में करते हैं। एडिशन ऑफ फर्टिलाइज़र, यू माइट हैव सीन फार्मर एंड gardeners adding chemical fertilizer to their field, and gardens chemical fertilizer are rich in particular nutrition like nitrogen, phosphorus and potassium. The benefit of adding chemical fertilizer is that the soil deficient of any particular nutrition get replaced with that nutrition. Example of some chemical fertilizer are urea, phosphate एंड पोटेशियम सल्फेट। अब उर्वरकों का जोड़, आपने किसानों और बागवानों को अपने खेतों और बगीचों में रासायनिक खाद डालते देखा होगा। रासायनिक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे विशेष पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। रासायनिक उर्वरकों को जोड़ने का यह लाभ यह है कि किसी भी विशेष पोषक तत्वों की मिट्टी की कमी उस पोषक तत्वों के साथ फिर से भर जाती है। कुछ रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, फॉस्फेट और पोटेशियम सल्फेट का यूज करते हैं। एडिशन ऑफ कंपोस्ट, इन देयर प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द मेकिंग ऑफ कंपोस्ट एंड इट्स बेनिफिट्स। कंपोस्ट कैन बी मेड बाय यूटिलाइजिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जनरेटेड इन योर होम्स। इट इज cheap, safe and enrich the soil with valuable nutrition. अब खाद का जोड़, पिछले कक्षा में आपने खाद बनाने के बारे में सीखा होगा या पढ़ा होगा। इसके लाभ, बायोडिग्रेडेबल कचरे का उपयोग करके कंपोस्ट बनाया जा सकता है। हमारे घरों में से उत्पन्न यह सस्ती है और सुरक्षित होती है और मिट्टी को समृद्ध करती है। Growing leguminous crops for soil enrichment. Plants require nitrogen to make proteins. After harvesting, the soil becomes nitrogen deficient. Although nitrogen gas is available is plenty in the air, plant cannot utilize it directly. They can absorb nitrogen only in soluble form. Symbiotic association of rhizobium and leguminous plants like peas, grains, beans is a natural way of replacing the soil with nitrogen. So sometimes farmers grow these plants alternately with other crops. This restores the nitrogen content of the soil which was used up by the earlier crop. अब प्रोटीन बनाने के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। कटाई के बाद मिट्टी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। हालांकि नाइट्रोजन गैस हवा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पौधे सीधे इसका उपयोग नहीं कर सकते, वह केवल नाइट्रोजन को अवशोषित कर सकते हैं। घुलनशील जैसे मटर, अनाज, बीन्स जैसे राइजोबियम और लेग्यूमिनस पौधे को सहजीवी संग नाइट्रोजन के साथ मिट्टी को फिर से घुलने के तरीके में एक प्राकृतिक तरीका होता है। इसलिए कभी कभी किसान इन पौधों को अन्य फसलों के साथ वैकल्पिक रूप से उगाते हैं। मिट्टी को नाइट्रोजन सामग्री को पुनर्स्थापित करता है जो पहले की फसल द्वारा उपयोग किया जा सकता है। थैंक यू।